दोस्तों, स्वागत है आपका एपिसोड 5 में फिटनेस विटनेस एंड लाइफ विद जेके ओनली एंड ओनली ऑन bodyandstrength.com। आज हमारे जो दो गेस्ट है उनको हम एक एक करके बुलाएंगे। तो जिसको हम सबसे पहले बुला रहे हैं वो है इंडिया की लेडी मिल्का। जी हाँ, जब मिल्का जी का नाम आता है तो रनिंग की बात आती है और ये लेडी रनर है। ये एक ऐसी पर्सनालिटी है जिन्होंने हिंदुस्तान के लिए 200 से ज्यादा मेडल लाए हैं और इनका सपना है कि ये ओलंपिक जाके हिंदुस्तान के लिए गोल्ड लेके आए और ऐसे सपने देखने वाले डेडिकेशन वाले लोग बहुत ही कम मिलते हैं। तो स्वागत करते हैं हमारी लेडी मिल्का एके आयशा का। आयशा, वेलकम टू द शो। We have Aisha with us. Aisha, इनको अगर हम नाम दे तो फीमेल हुसैन बोल्ट बोल सकते हो, बिकॉज जैसे मैंने पहले बताया कि आई हैव नेवर मेट अ गर्ल हु टॉक्स टू मी एंड से कि भाई मुझे ओलंपिक में गोल्ड लाना है इंडिया के लिए रनिंग में। यानी मैंने आज तक की ऐसी लड़की को नहीं मिला और मेरे हिसाब से शायद ये एक ही ऐसी कंटेंडेंट होगी, बिकॉज मैं आज तक के कोई लड़की को नहीं मिला जो रनर है और उसका ड्रीम है ओलंपिया में इंडिया के लिए गोल्ड लाना। सो आयशा, वेलकम टू माय शो। Thank you. That's a very warm welcome, I have to say. Thank you. That you very warm. आयशा, कुछ क्वेश्चन है मेरे पास आपके लिए जो रिलेटेड टू आपके प्रोफेशन और पर्सनल लाइफ से है, ठीक है? सो द फर्स्ट क्वेश्चन आई वांट टू आस्क यू दैट व्हाट पुश्ड यू, यानी ऐसी कौन सी चीज थी जिस दिन आपने ऐसा डिसाइड किया मुझे फिटनेस करना है, दिस इज माय लाइफ? I think after I won my first national gold medal at the age of 16, it was my first nationals, my first gold medal. I thought that was it. I thought this was the path that was chosen for me. I think the sport chose me. I always say that a sport chooses you. You know, you never choose a sport. It's like how they say, एक बच्चा अपनी माँ को choose करता है. I think for me, sports is exactly like that. Like athletics is my mother, my father, my siblings. You know, it has given me a lot. And I always feel like I'm very, very blessed that it channeled me into this place where I never thought that I would be, which is today being fit girl. You know, this was not the plan. The plan was only to run and get to the Olympics. Okay. Fit girl का plan नहीं था. So it just happened. So yeah, I feel very young in my career. I feel very fresh and new in my career when I kind of knew that this is what I wanted to do. So how many running race you have ever done and how many medals you have achieved? If you can talk a little bit about yourself. Definitely not as many as you, but for sure about 100 plus races. 1 kilometer, can you imagine? I swear, I am injury, so I can't run even 1 kilometer. Well, but your achievements speak for themselves. So I have probably run over 100 races in span of 20 years, maybe even more. You know, हम गिनते नहीं हैं. 100 races. But yeah. I'm sure so for a very long time. I'm sure आपके medals के लिए एक अलग cupboards हो गए, right? एक अलग कैबिनेट थी हमारे घर पे पहले, but right now all those are stacked up in boxes. But I would think over 200 medals. Wow. For sure. Couple of trophies. थोड़ी देर पहले आयशा मुझे बोल रही थी, look at this, तो मैं आयशा को ऐसे कैमरा नीचे करके दिखा रहा था, ये भी है। अब मुझे पता चल रहा है भाई किससे बात कर रहा है, तू किससे बात कर रहा है? 200 मेडल, यानी ये जो 4-5 दिख रहे हैं ना इधर पे कुछ काम के नहीं है। 200 मेडल किसको बोलते हैं यार? 200 मेडल, superb. I don't think anybody has achieved so much in India so far. No, there are some very good athletes that are very not well known of, but I have encountered some very good athletes who have run through my career with me. So yeah, there are some fantastic girls in the space of athletics. I have never met. I would say I have never met. There must be बहुत सारी ऐसी लड़कियां होगी, but मैं नहीं मिला. So Aisha, my next question to you is that fit girl and a girl who runs. So you are a professional runner. So what makes difference? You know, what do you think it's a difference between the running and the fit girl? So a girl named Aisha who's a runner, a girl is named fit girl Aisha. So what are the difference in both the personalities? Aisha is actually a very quiet girl. Okay. She doesn't talk. Right. She's a very introvert kind of a person.
and she doesn't like to mix much with people. She likes to have her circle of friends very close. But Fit Girl is very outrageous. She's also very outspoken. She likes to meet more people, to kind of touch down onto their lives and see what it's like to help them overcome their difficulties. Right. So yeah, you could say like a very split personality of who I am in person and who I am on the gram. I mean, I am still very true to myself, but I think Fit Girl has allowed me to open those wings and become more outspoken, become more for the people, speak the truth, stand for what is correct. What are the different benefits between the fitness and the running? What, according to you? Fitness is a very broad term, you know, like we know today fitness, हर कोई fitness कर रहा है यार, you know, Instagram, YouTube, everybody is doing fitness. Yeah. And then running is a very broad term. So running is more cardiovascular related, while fitness is more strength based, power based, conditioning based, you know. So I think both together as a amalgamation are just fantastic. But there are many, what I do not like today about people is that fitness people are teaching running and running people are teaching fitness. I'm not saying you can't do that, but if you want to do that, please educate yourself. You know, they are two very different fields, and to have knowledge, Right. it takes a lot of effort to learn something new. Like I will always call myself a running specialist because that's who I am. I'm a runner, I'm an athlete, that's my speciality. But I want to learn about strength training, I want to learn about weight training. That doesn't mean that I will become a master of those things. It's just about me enhancing my knowledge and getting more information so that actually it can help me with my running. You know, it works as a blend together. That's awesome. So the next question I would like to ask कि जब आपने ये सोचा था कि मुझे एक प्रोफेशनल रनर बनना है, so what was the family reaction, your parents, your siblings? What kind of a support? आपको उन्होंने कोई support किया या कोई against था? What was the condition at that zone? My parents have been my biggest support system. I say that everywhere. If it wasn't for my parents, I would not be where I am today. Okay. I'm very, very thankful, and I always want to tell parents that please encourage your children. Do not give up on their dreams. You know, their dreams are theirs, not yours. If they fail, it's fine. But looking at the example that my parents have set, I will always tell parents that please stand up for what your children want to do and encourage them, and don't let them give up even if they fail. That's awesome. That's awesome. And the next I want to ask you is that, you know Aisha, I know Fit Girl, I know a girl who runs, who lifts and everything, but I don't know who's the real Aisha behind, like what exactly she do, what is her hobbies, what she likes, what she doesn't like, यानी क्या पसंद है, क्या नहीं पसंद है, और फिटनेस के अलावा और क्या चीज करती है, what exactly Aisha do, वो मुझे और जितने भी लोग देख रहे हैं उनको नहीं पता है, I would say नहीं पता है, because हमने सिर्फ यही देखा एक लड़की है जो तेरा बैंड लगाती है और वो भागती रहती है घर पे और बोलती है कि घर पे भी कार्डियो हो सकता है. So, if you would like to say a few things about it in a small answer. Aisha likes to race fast, not just on the track, but on the bike, in the car. She likes racing of all sorts. I wanted to do many things actually when I was young. You know, I wanted to join the army. I was very ambitious. Everything was about wearing and being very proud of the national flag for me. So I always wanted to be in the army when I was very young. My father didn't allow it. Then I wanted to do dirt bike racing. Right. That was on my mind for the longest time. And at the off-roading event is where I learned more about it. So I will consider it at some point in my life. So I love speed of all sorts. Definitely love riding and driving fast. I also like to eat a lot of chocolates. I think that has been very well established through my Instagram. But I have almost quit. I will say about 90% of my diet has no sugar anymore. What else does Aisha like? Chocolate I sent you. Aisha, huh? Yeah. The chocolate I can It was nice. No, what you sent me was nice, but my father ate half of it. I will send you more.
What does Aisha not like? Aisha does not like gossiping. She hates gossip. She hates backbiting. She hates and dislikes people who don't have the courage to talk on her face. She appreciates criticism and she takes it head on. And she would like people to be more true to themselves. I wish more people were true to themselves. You don't bullshit the world, basically. Don't talk rubbish. So You what always lie to the people. You can never lie to yourself. inspires you, and what is your next goal? My only goal is going to be at the Olympics. और कोई goal ही नहीं है मेरा life. And when we can see that happening? Fingers crossed. No, but It's a still, tough. It's a tough field out there. an athlete know when it's the right time. Like, people ask me that when you're gonna go Olympia. I know then it's gonna take me this much of time, and I have for myself. But I'm sure you must have yourself time limit कि मुझे ये time का मेरा target है और you will reach. So when Actually, well, I have never kept a target. When I used to keep unrealistic targets for myself, I didn't achieve them, and then they led to a lot of disappointment. In 2012, I was really close to making it to the games, but I was not in the time bracket, so I lost out on that too. 2016, I was training very hard for Rio Olympics, and many months before I snapped my Achilles, so I was completely discouraged. I always felt like, okay, I was getting closer and closer. And I've really not put any targets for the next Olympics. I have a dream, I have a goal, but I'm really enjoying this process of training right now. And often I have lost this joy of training, which I'm enjoying right now. So thankfully with Fit Girl, I have a lot of support from people. I have a great team that works with me, a great set of coaches. I have an American coach, I have a French coach. I have great physios, great therapists, and now I've got new training partners to train with. So everything is looking good and going in the positive direction. And I'm excited to race because I haven't raced in 5 years. And the field with Hima Das is really, really amazing. And I love competition. I'm highly competitive and I hate losing. So I wish to see that's you soon. And I can proudly say I still have a picture with you from our last event we did. So I can proudly post that picture and say I know a person who runs for India in Olympic and get the gold medal. Thank you. Fingers crossed. I will work hard for it. I wish that happened very soon. So now the next question I have for women, especially for women, like how does fitness empowers them? हालांकि फिटनेस हर किसी के लिए एम्पावर करती है, पर वुमेन के लिए स्पेशली ये कैसे रिवॉर्डिंग है? इससे क्या बेनिफिट? I think women can, it gives you a sense of freedom and courage. For me, exercising, as I grew into, from being a teenager to a woman, I felt like I became stronger, more, not just physically, but emotionally and mentally. Exercise releases those endorphins in your head. It also helps you kind of release the stress and tension. I think women take a lot of stress and tension on their head, I think exercising and running releases that. But more importantly, I think it gives you a sense of freedom, that you're capable of achieving something. You put a goal, like somebody wants to learn how to do a push-up, or somebody wants to learn how to do a correct squat. Right. When you achieve that, it's a sense of achievement. You feel confident that I went out and set myself to do something that I thought I could never do, and now I achieved it. So it gives you a sense of freedom and courage. That's awesome. So, Aisha, running is like a piece of cake for other people, especially for me. Kya running? बस खाली हाथ पैर तो चलाना है. I used to think this way, but I never been part of run because मुझे पता है कि मैं नहीं भाग सकता. और You never came for a run. Sorry? You never came for a run with me. That's why. Yeah, I know I've seen you. वो देख के मेरी एनर्जी मुझे लगता है बस आज का कोटा लगता है. But a lot of people think running is just a piece of cake. तो बट एक्चुअली वो जब रन के लिए उतरते हैं, चाहे वो फिर लोखंड वाला बैक रोड पे हो जाओ या ट्रैक पे हो जाओ या जिम में कार्डियो पे ही हो जाओ, मशीन पे,
तब उनको पता चलता है कि यार ये कितना डिफिकल्ट है. लाइक फॉर मी इफ आई गो फॉर रन, लाइक यू नो, जब भी मैं सोचता हूँ ना कि अरे यार अब तो रन करना है, मीन्स यू नो दिस इज समथिंग आई ऑलवेज वांट टू लर्न इज रनिंग. बट आई डोंट नो, मैं जब भी रन करने जाता हूँ तो मेरा शिन पकड़ लेता है. आई कांट रन मोर देन 500-700 मीटर. उसके बाद मेरा शिन पकड़ लेता है. हाँ देखो यहाँ पे डॉक्टर भी मिल गया हमें. तो what do you think, यानी कि what are the specific thing you would like to say and you would like to give a tips to the new runner or somebody who wants to join running? Firstly, please buy my book. It's called Run. It's available on Amazon. It's called Gun. Run. Run with the gun. I think your book should have Run with the gun, because you are no less than a gun. No, running is actually a very simple. It's a very simple activity. With the name of Run, and she will talk. It's called Run. Yeah, running is a very, very simple activity. You just have to know how to run. A lot of people think they know how to run, but there are, like any other sport, you have to learn how to play tennis. You have to learn how to weightlift. You have to learn how to play basketball. Running is just like that. If you know the correct form of running, you will excel at it. You know, you can tell Aisha to go and play tennis, but her ball and hand coordination is so poor, she doesn't know how to play tennis, right? But I can say, oh, everybody knows how to play tennis. No, you can't. You know, there's a skill that you acquire. Running is like that. So when a lot of people, and see, for someone like you, it's obviously different because you only lift weights, right? So your power, you can burst over 10 meters. But if I tell you to run more than 20 meters, you don't have the lung capacity, you don't have the posture, you don't have the form. So every sport comes with its pros and cons, you know. So you have to respect that. You have to know that, all right, if I'm going to be running a 42K, I have to get my posture right. Second, I have to... For people who like to run, I was not saying you. मेरे स्टाइल की रनिंग में नहीं आता है. I always say I will never run a 42 kilometer, even if somebody told me to ride my cycle besides somebody who's running a 42 kilometer. It is by far the most difficult event. Honestly, what you guys do, you know, हमें ऐसा लगता है, हर कोई लगता है कि हम बहुत मेहनत करते हैं, ये करते हैं, but means you know, the real thing I believe, you know, everybody works really hard. And it's actually not a piece of cake when you hear the 42 kilometer and when you know you don't even know how to run 4.2 kilometer also. So that's, I would say, respect to you, Aisha, for this wonderful. And then I have a next rapid fire questions for you, which you have to answer as quick as possible. So the first question, you have to answer very quick. No, okay, no. You have to answer very quick. You have prepared a hamper to send to my house, I hope. Because I'm expecting gifts. I already did in advance. I sent it to boxing glass. I sent it to India's best peanut butter. What else you want? The next time I'll send. Not very helpful. Next time I'll send. No, don't send peanut butter. I'm not allowed to eat peanut butter. Okay. It's not part of my diet. It's not part of your diet, but still I would love to spoil. आप 42 की जगह 41 ही चलो तो मेरे को थोड़ा लगेगा हाँ 1 किलोमीटर मैच. So the first question we have for you is your favorite food. French fries. You can never go wrong with French fries. And this is part of your diet, right? This is part of my life, not just diet. It's part of my life. Like your favorite person. You know, my favorite person is my niece, Leanne. You hate? Life. You love? Humans. Your favorite actor or actress? Shah Rukh Khan forever. Wow. Mine is too. Only Shah Rukh. Starts there, ends there. You idolize? I idolize Cathy Freeman, Australian 400 meter sprinter. Your crush? Hi. Sorry? बहुत है. बहुत है. एक कोई एक. I would say Shah Rukh Khan. I actually had the longest
For the longest time, I had a crush on Shah Rukh Khan through my college and school years till I met him one day in 2012. Wow. And that's when I realized that, okay, that was it for me. Nice. The crush ends there. Your favorite color? Red. Your dream of visiting? Sorry? Your dream of visiting any place where you would like to visit? I would like to visit South America. I think the next question answer I have, but still I will ask you. Running or gym? Choose one. Running any day. I have the next question ka answer. So that's it, Aisha. This was the final episode for this series, Fitness and Life with Junaid Kaliwala. So we tried to arrange this web series with the name of my name. So you know कि lockdown में बहुत सारे लोग घर में बैठे थे, and since we can't do live interview, we thought of doing a virtual interview where we got come to know about a lot of people's different personal life, like आपके life के बारे में बहुत कुछ पता चला. So it was wonderful experience, and I hope guys आप लोगों को भी पसंद आया होगा. Thank you so much for joining us और हमारे सारे एपिसोड को इतना प्यार देने के लिए. We'll be coming very soon back with bodyandstrength.com. Aisha, would you like to say something to our viewer? I want to say thank you for watching, and Junaid is a huge inspiration. Really is a huge inspiration, a very good human being, and very positive about everything in life. I think that's why we have continued to stay in touch and are still friends from the time we met in Goa. It means a lot. So thank you for being that force of energy to many young boys and girls who are looking forward to take up bodybuilding and weightlifting. Thank you Aisha, that's so kind of you. और जो आज हमारे साथ में जुड़ रहे हैं उनका नाम है राजवीर सिसोदिया. एक ऐसी इंस्पिरेशनल पर्सनालिटी है जिन्होंने 3 साल तक के डिप्रेशन में रह के उसको ओवरकम किया है. उसके बाद उन्होंने अपना फिटनेस यूट्यूब चैनल चालू किया है, और वो चैनल चालू करने के बाद 1 या 1.5 साल के अंदर ही उनके सब्सक्राइबर 1 मिलियन होने जा रहे हैं. तो स्वागत करते हैं राजवीर का हमारे शो में. राजवीर भाई, वेलकम बैक टू माय शो, एंड थैंक यू अपना टाइम निकाल के यहाँ जुड़ने के लिए और अपने फैंस के बहुत सारे आंसर देने के लिए, बिकॉज आपके फैंस के बहुत सारे क्वेश्चंस हैं यहाँ पे जो हमने चुन के निकाले. तो लोग भी जानना चाहते हैं कि ये यूट्यूबर जो 1 मिलियन यानी 10 लाख लोगों को प्यार मिला, 10 लाख लोगों का, वो कौन है, क्या करता है. तो जैसे कि मैं जानता हूँ राजवीर भाई को, एक यूट्यूबर, एक इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर और एक बहुत ही अच्छी बॉडी वाला इंसान. बट इसके अलावा राजवीर है कौन पर्सनली? राजवीर एक इंजीनियर है. वाओ. जैसे इलेक्ट्रिकल इंजीनियर है, और मैंने कभी जॉब की नहीं. अच्छा. फादर मेरे टीचर है और बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट टीचर रहे हैं. वो इधर गाजियाबाद में हम लोग रहते हैं, तो सारे लोग जानते हैं. और मेरे जो फादर का नाम है ना, जो फेमस है, वो बच्चों को तोड़ने में. जो टीचर होते हैं ना जो बहुत मारते थे, वो वाले टीचर मेरे फादर रहे. हाँ. तो जब बाहर के बच्चे पिटे तो मैं भी बहुत पिटा हूँ. तो 12th तक मेरे 90% मार्क्स थे. 10th में 95, 12th में 90%. उसके बाद मुझे थोड़ी सी सेंस नहीं थी करना क्या है. तो फादर ने बोला मार्क्स अच्छा है, बीटेक कर लो. मैंने ठीक है, कर लेते हैं. तो बीटेक के बाद मुझे समझ आया कि मेरा तो ये लाइन ही नहीं है. और बॉडी बिल्डिंग में करा था 9th क्लास से, बिकॉज मेरे घर में 3 भाई हैं जो रेसलर हैं. कजिन ब्रदर्स है, इंटरनेशनल लेवल पर रेसलर है. उनको देख के वो होता है ना कीड़ा की, हम बचपन में छोटे हैं तो जब हम देख रहे हैं किसी इंसान को कि इतना अच्छा साइज है, इतनी अच्छी बॉडी है, चल रहे हैं तो लोग कैसे देख रहे हैं, टोरा, वो वाली चीज मेरे दिमाग में. तो मैंने कहा मुझे भी बॉडी बनानी है. तो 9th क्लास से मैंने छुप के वर्कआउट करना शुरू कर दिया था. बीटेक 3rd ईयर में था मैं. उसके बाद और पहलवानों वाली बॉडी थी, मोटा ताजा, खूब तगड़ा, खाना पीना. 3rd ईयर में था तो एक लड़की ने थोड़ा डांट दिया मुझे. अच्छा. कि अपने आप को बॉडी बिल्डर समझता है, शक्ल देखिए अपनी, और गोविंदा लगता है, क्योंकि खुद को सलमान खान समझ रहा है, गोविंदा लगता है. तो वो बात मुझे इतनी जिंच हुई. उसके बाद मैंने 3 महीने के लिए कॉलेज बंद. सुबह मैंने घर से निकलना कॉलेज बोल के, बैग के अंदर शूज, प्रोटीन शेक और मेरी टी शर्ट, और जाके मैंने कहीं भी सो जाना किसी भी दोस्ती का. शाम को 4 बजे उठना, फिर मैंने जिम जाना. गोल्ड जिम मुझे ज्वाइन करवाया भैया ने. वहां जाके वर्कआउट करना और 6 बजे घर आ जाना, ये बोल के कि कॉलेज से आया. 3 महीने में कॉलेज नहीं गया. तो 3 महीने फिर मेरे ब्रदर हैं संजय, उन्होंने सपोर्ट किया, बहुत ज्यादा सपोर्ट किया. तो 3 महीने के बाद ना, आपने शायद नहीं देखे होंगे फोटोज में, बहुत ज्यादा मोटा था.
फिर पीछे ये जो फोटोज लगे हुए ना, हाँ ऐसा ट्रांसफॉर्म किया मुझे मेरे कोच ने। तो 3 महीने के बाद जब कॉलेज गया ना, तो लोगों ने पहचाना ही नहीं, ना टीचर्स ने ना बच्चों ने, इसको एकदम से क्या हो गया, कैसे हो गया। उसके बाद मैंने पोर्टफोलियोज कराए, तो उसके मेरा लक ना बचपन से अच्छा रहा है। जैसे लोगों को अब यूट्यूब चैनल ग्रो करना कितना मुश्किल होता है भाई, आपका भी चैनल है, आपको पता होगा, है ना। मेरा देखो, मुझे- मैं अटका हाँ। पड़ा, सिल्वर मेरे पे को नहीं 1 साल पहुंचा, हुआ है। मैं सिल्वर पे नहीं पहुंचा, आप गोल्ड ले आ गए। नहीं, जल्दी पहुंचोगे। तो मैं किसी भी चीज को करता हूँ ना, तो मुझे उसका आउटपुट आधी मेहनत में मिल जाता है। वाह, उसी काम को जुनैद भाई कर रहे हैं और उसी काम को राजवीर कर रहा है, तो जुनैद भाई देंगे अपना 100%, और राजवीर बहुत आलसी इंसान है, वो खींचतान के 50% भी देगा ना, तो उसको 50% में ही मिल जाएगा। वाह, तो मैंने पोर्टफोलियोज वगैरह कराए, उसके बाद कुछ जगह मेरे पोर्टफोलियो गए। एक्टिंग मुझे शुरू से शौक था। उसके बाद मुझे मुंबई से कॉल बॉल आने शुरू हो गए। मुंबई में मैं रहा लोखंड वाला। अब जरूरत होती है किसी मेंटर की, तो किस्मत से एक संजीव राठौर हैं, वो बहुत सारे सीरियल्स, सुशांत सिंह राजपूत के साथ सीरियल्स करते थे वो। तो उनके साथ मेरी कुछ बॉन्डिंग ऐसी हो गई, अच्छा, जिससे मैं जैसे बात कर रहा हूँ तो मेरा जो बिहेवियर है वो बहुत फेमिलियर है। राइट, तो जैसे किसी के साथ थोड़ी देर भी उठू बैठू ना, अब जैसे रूबल भाई से आप कभी पूछोगे तो वो भी बड़ा प्यार करते हैं मुझे, और मैं Right. एक ही बार मिलता हूं उनसे, और बात उनसे मेरी डेली बेसिस पे होती है। तो इंसान प्यार कर बैठता है मुझे जो जान जाता है। तो उन्होंने अपने घर में रखा कि तू मेरे घर में रहे। अब मुंबई जाके ऑडिशंस देना इतना मुश्किल है, कोई नया इंसान जाएगा ना, उसको ये भी नहीं पता लगेगा कि मुझे ऑडिशंस देने का है, कौन सा कास्टिंग हाउस जो है वो फेक है या कौन सा रियल है। वहां जाके मैंने, उन्होंने मुझे मतलब बाइक पे बिठाना और सब जगह घुमाना, जितने भी ना कास्टिंग हाउसेस थे वहाँ ऑडिशंस कराने। उसके बाद मुझे टीवी सीरियल्स मिलने शुरू हो गए, सावधान इंडिया, क्राइम पेट्रोल, फियर फाइल्स, भाग्य लक्ष्मी, 2 मूवीज भी की मैंने, मतलब बहुत छोटा रोल था, एक जस्ट 30 मिनट्स थी, एक रक्तदार थी। उसके बाद मुझे मजा नहीं आया उसमें, मैंने कहा यार ये तो बहुत बेवकूफ काम है, यहाँ पर हम ऐसे ही घिसते रह जाएंगे। तो फिर मैंने बिजनेस शुरू किया मैंने फूड सप्लीमेंट्स का। 2017 में बिजनेस शुरू किया। उसके बाद बिजनेस में लॉस आना शुरू हो गया, क्योंकि फ्रेंड सर्कल बहुत बड़ा था, पहलवान थे और बॉडी बिल्डर्स थे, बहुत सारे दोस्त थे, सबने आना उधार लेके चले जाते, और वो मना होता नहीं है शुरू में। Right. अभी कोई फ्रेंड आए और बोले भाई, है ना, और ओरिजिनल अगर जेन्युइन सप्लीमेंट्स आप बेचोगे ना, तो उसमें कुछ बहुत ज्यादा बचत नहीं होती है, 100 रुपए 200 रुपए आपको पता होगा आपके स्टोर से। तो उधार में जाना शुरू हो गया, जाते जाते मतलब 2 साल के अंदर मैंने खाया कोई 30 से 40 लाख का झटका। जो लोग उधार लेके जा रहे हैं उनसे मैं मांग नहीं रहा हूँ, क्योंकि वो बनियाओं वाली वो थी नहीं, वो खामा में खोल लिया कि चलो कुछ करते हैं। तो ये था कि 24 साल का हो गया हूँ, अब जॉब में करता नहीं हूँ, घर वाले मुझे डांटते कि तू मुंबई भी छोड़ के आ गया। और मुंबई में ऐसे करता था कि मुझे कॉल आया तो पैसे के लिए नहीं, क्योंकि पैसे बहुत कम मिलते हैं न्यू कमर्स को ना, पर डे का 6,000-5,000 रुपए मिलता है। वो भी सीरियल्स करोगे वो भी 90 दिन के बाद आपको मिलेंगे। मतलब आज अगर आपने शूट किया है ना, तो आज के जो 6,000 रुपए हैं वो आपको 90 दिन के बाद मिलेंगे। ये शायद आपको पॉलिसी पता होगी टीवी सीरियल्स वाले जो जितने भी लोग होते हैं उनकी। तो पैसों के लिए नहीं था, मुझे ये था कि फ्लाइट पकड़ के जाऊंगा, टीवी पे दिखूंगा, मम्मी पापा खुश हो जाएंगे, पड़ोसी खुश हो जाएंगे, रिश्तेदार खुश हो जाएंगे। तो उसके लिए मुझे मुंबई रहने की जरूरत नहीं है, मैं यहीं से कर लूंगा। फ्लाइट पकड़ के जाऊंगा, नेक्स्ट डे शूट है, फ्लाइट पकड़ के जाऊंगा, 2 दिन का शूट करूंगा, वापस आ जाऊंगा, पैसे जब आएंगे आते रहेंगे। लेकिन इसके साथ क्या करना है, कुछ तो करना पड़ेगा। बिजनेस करते हैं, 30-40 लाख रुपए लगा के शॉप खोली, बहुत अच्छी, बनियाओं वाली वो थी नहीं, एटीट्यूड अपना, जैसे कि आपने बताया, फिर दोस्तों को देते क्या। हाँ। तो राजीव भाई आपसे एक और सवाल मेरा ये है कि जैसे कि आप अभी बहुत बड़े इन्फ्लुएंसर हो इंडिया के अंदर, ठीक है, अच्छा, और काफी सारे लोग आपको जानते हैं, आपको फॉलो करते हैं और आपसे कुछ सीखते हैं, तो आपको लगता है कि एज एन इन्फ्लुएंसर आपको अब ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके ऊपर बढ़ गई है कि आपको कंटिन्यू? बिल्कुल। अभी मैंने लेटेस्ट वीडियो बनाया 2 दिन पहले। अभी क्या हुआ ना कि बहुत अच्छा भी लगता है। मैंने एक वीडियो बनाया अभी, लास्ट वीडियो अगर आप देखोगे मेरा, तो मैंने उसमें मेरे सब्सक्राइबर्स को थैंक्स बोला हुआ है, और ये बोला हुआ है कि आपने मुझे प्राउड भी फील कराया है, इमोशनल भी, और साथ में मैं थोड़ा डर भी गया हूँ। हुआ क्या, एक पेड प्रमोशन था एक प्रोटीन का, उसका मैंने वीडियो बनाया। वो जब मैंने वीडियो बनाया ना, वीडियो जैसे मैंने डाला 4 घंटे के बाद वो स्टॉक खत्म। जिस प्रोटीन ब्रांड का मैंने वो वीडियो बनाया, वो 4 घंटे में स्टॉक खत्म। तो मुझे इतना वो लगा कि हो सकता है कि मैं पैसे के लालच में कोई गलत चीज भी प्रमोट कर दूं। हर इंसान की बेसिक नीड है पैसा, और पैसे के चक्कर में सपोज करो जुनैद भाई बोले कि भाई प्रोटीन की क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं है, लेकिन आप कर दो प्रमोट,
तो शायद मैं कर दूं, लेकिन उससे लोगों को नुकसान भी तो हो सकता है। तो ये कहीं ना कहीं जिम्मेदारी मुझे उस दिन फील हुई कि नहीं, अभी कुछ ऐसा काम नहीं करना कि लोग यानी तक आपके मेरी हिसाब बात से जो पहुंचे। आपने प्रोडक्ट प्रमोट किया था वो सही नहीं था? नहीं, वो सही था। अच्छा, सही था। लेकिन कई बार ऐसे प्रोडक्ट्स भी आ जाते हैं जिनको कि बहुत अच्छे नहीं है, पर कि हाँ पैसे मिल रहे हैं तो कर दो। तो राजीव भाई, आप अपना टाइम मैनेज कैसे करते हो? जैसे यूट्यूब भी है, इंस्टाग्राम भी है, फिर आपकी फैमिली की भी कुछ एक्सपेक्टेशन रहती होगी, तो सबको मैनेज कैसे करते हो? पूरी फैमिली की एक्सपेक्टेशन पूरी करना कैसे कर लेते हो? मैं क्या करता हूँ कि मैं किसी दिन मुझे ऐसे लगा, मेरे 2 चैनल है, एक चैनल पर 1 मिलियन हुए नहीं है, होने वाले 10,000 सब्सक्राइबर कम है, दूसरे पर 1 लाख है। मेरे ले लो भाई, तो मेरे मैं भी बढ़ रहे नहीं है, ले लो मेरे 10। अरे भाई बहुत बड़ा दिल है आप। तो मुझे ऐसे लगता है कि आज का जो दिन है ना मेरा, आज मैं YouTube वीडियोस बनाऊंगा, सुबह उठूंगा 6 बजे, आज मैं किसी से बात नहीं करूंगा, आज मैं कहीं नहीं जाऊंगा, किसी से बात नहीं करूंगा। तो आज एक ही दिन के अंदर मैं 5 वीडियोस बनाऊंगा। वाओ। 2 वीडियोस वैसी बनाऊंगा जिसके अंदर की मेरे एक्सपीरियंस की मैं नॉलेज दूंगा। सपोज करो कोई मुझसे पूछ रहा है कि फैट लॉस मसल गेन कैसे करें, क्रेटिन क्या होता है, बैठे सामने रख के वीडियो बना दिया। 2 वीडियोस में वर्कआउट की बनाऊंगा और 2 वीडियोस में ब्लॉगिंग के लिए बनाऊंगा, ब्लॉगिंग चैनल पर। ओके। तो मेरी जो 5 से 6 वीडियोस हो गई, ये मेरे हफ्ता 10 दिन निकाल देती है कि अब मेरा कुछ काम नहीं है, अब मुझे क्या करना है, इनको निकालना है और एडिट करना है। वीडियो वाइज वीडियो एडिट करूंगा, एक वीडियो एडिट करी आज डाली, फिर कल का रेस्ट दूंगा, फिर वीडियो ऑलरेडी मेरे पास है वो एडिट करी परसों डाल दी। तो अब मैं 7-8 दिन के लिए फ्री हूँ। मैंने एक दिन में इतनी मेहनत कर ली कि मैंने 7-8 दिन के लिए खुद को फ्री कर लिया। तो उसमें जो मेरा दूसरा बिजनेस था, एक बिजनेस मेरा एजुकेशन एंड प्लेसमेंट का भी है, नोएडा में ही है। तो जो लोग ग्रेजुएशन करना चाहते हैं, सपोज करो आपने बीटेक किया है और आप एक इंजीनियर हो, राइट, आप जॉब कर रहे हो 40,000, 50,000, 60,000 की जो भी आपको पैकेज मिलेगा, लेकिन आपको साथ में MBA भी करना है या आपको MTech भी करना है। ओके। लेकिन आप या तो जॉब कर सकते हो या पढ़ाई कर सकते हो, आप कॉलेज थोड़ी जाओगे आप, राइट। घर की जिम्मेदारियां भी हैं, शादी भी करनी है। तो उन लोगों के लिए मेरे पास ऐसा ऑनलाइन मैंने कोर्स बनाए हुए हैं कि आप आधे पैसों में आप मुझे बोलोगे राजवीर भाई मुझे MTech करना है या MBA करना है, तो अगर आप रेगुलर कॉलेज से जाके फीस दोगे तो आपको 4 लाख रुपए देने पड़ेंगे। लेकिन मैं 1 लाख रुपए में आपकी वो MTech या MBA या BBA वॉट एवर यू वांट टू डू वो मैं करा दूंगा, और जो डिग्री आपको मिलेगी वो रेगुलर क्लासेस की मिलेगी। वाओ। मतलब ऐसा नहीं है कि कॉरेस्पॉन्डेंस की डिग्री आपको मिल रही है, रेगुलर क्लासेस की मिलेगी, यूनिवर्सिटी से मिलेगी, एग्जाम आपको देने पड़ेगे। तो आप इसमें ये कर सकते हो कि आप सारा दिन जॉब करो, उसके बाद रात को 1-2 घंटे पढ़ाई करो और ऑनलाइन एग्जाम। हाँ ऑनलाइन एजुकेशन तो वो भी है, तो उसको देख लेता हूँ मैं। तो राजीव भाई, राजवीर भाई, हाँ कोई नहीं, दोनों नाम मेरे ही हैं। दोनों आपके हैं। तो राजवीर भाई, आपकी जर्नी में सबसे टफ मोमेंट कोई ऐसा रहा है? अगर मैं एक टफ मोमेंट की बात करूँ कि यार ये मोमेंट बहुत टफ था। सबसे टफ, मैं अभी 3 साल डिप्रेशन में रहा हूँ, वो मैं आपको बता रहा था, आपने बात काट दी थी। 2017 में जब ये 2017 में जब ये चीज चल रही थी मेरा शॉप वाली, तो उसके बाद क्या हुआ, लोग उधार लेते गए, मैंने किसी से मांगा नहीं, उल्टा मैं लोगों से उधार लेके ना, मैं कहा जुनैद भाई 2 लाख रुपए देना यार, क्या करेगा कि मेरी शॉप का स्टॉक खाली हो गया है तो मुझे 2 लाख रुपए दो, मुझे स्टॉक लाना है। मैं 2 लाख रुपए का स्टॉक लाया और वो फिर उधार में चला गया, फिर शॉप खाली हो गई, फिर रूबल भाई से 2 लाख रुपए मिल गए। तो ऐसे लेते लेते ना सारे लोगों ने दिए मुझे ब्याज पे पैसे। ओके। और एक टाइम ऐसा हो गया वो मेरे ऊपर ही, मतलब 30-40 लाख का तो मैंने नुकसान खा लिया, तो 30-40 लाख रुपए मेरे ऊपर ही उधार हो गया और उसका ब्याज मुझे 1.5 से 2 लाख रुपए महीने देना पड़ता था। 50,000 रुपए शॉप का रेंट था, तो वो देते मतलब मैंने कभी किया नहीं ये सब चीजें, ब्याज पता नहीं था। तो वो जो मैंने टाइम देखा है ना, 1-2 महीने, 4 महीने, 6 महीने ऐसा लगा ठीक हो जाएगा, कि मतलब ब्याज भी देने के लिए ना गले की चेन बेचनी पड़ रही है, गोल्ड का हाथ का कड़ा बेचना पड़ रहा है, अपने फोन से बेचने पड़ रहे हैं, गाड़ी बेचनी पड़ रही है। ये दिन देखे तो मुझे लगा हो जाएगा ठीक, लेकिन ये चीज 3 साल चली जुनैद भाई। और मेरे दिमाग में जब मैं रात को सोता था ना, तो रात को मैं ये सोच के सोता था कल मुझे किसका ब्याज देना है, और तेरी जेब में कितने पैसे हैं, तेरी जेब में तो 4,000 है और ब्याज देना तुझे 20,000, तो अब कैसे करेगा। तो रात भर नींद नहीं आना, ये सोचना कौन सा दोस्त रह गया है जिससे पैसे नहीं मांगे उससे मांगते हैं। तो ये चीज, और उसके बाद फिर जब जेब खाली हुई तो मेरा रिलेशन था एक 5-6 साल का,
तो आई वॉज प्लानिंग टू मैरी हर। उसके बाद उसने भी की भाई टाटा बाय बाय, हम तो खाली हो चुके अब। और वो फेज जो था ना कि एक तरफ तो इधर से लात लग रही है, बिजनेस गया, पैसा गया, और पैसा भी गया, मैं ऐसी चीज में डूब गया हूँ, धंस गया हूँ जिससे मैं निकल ही नहीं पा रहा हूँ और कोई मेरी हेल्प करने वाला भी नहीं। और इधर से जब मुझे सपोर्ट चाहिए था ना मेंटल, ये एक इंसान, क्योंकि हर चीज माँ बाप के साथ शेयर नहीं की जाती। सही बात है। एक इंसान वो होता है जिसको हमारे बारे में सब कुछ पता होता है। जब मेंटल सपोर्ट चाहिए था ऐसे टाइम में, वो इंसान भी कह दे कि भाई तुम तो इन्हीं चीजों में फंसे रहोगे, मेरा कोई फ्यूचर नहीं तुम्हारे साथ, तो वो भी निकल गए। तो वो डबल डिप्रेशन था। फिर होते 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 मोटा हो गया बहुत, डिप्रेशन की दवाइयाँ खा के, नींद की दवाइयाँ खा के बहुत मोटा हो गया था। फिर एक फ्रेंड ने बोला कि यार इतना टाइम हो गया, 12-13 साल हो गए वर्कआउट करते हुए, बड़े भाई इतने बड़े लेजेंड हैं तेरे, रेसलर्स हैं, बॉडी बिल्डर्स हैं, तो इतनी नॉलेज है उसको शेयर करना यूट्यूब के ऊपर, थोड़ी बहुत जितनी भी उसको शेयर कर। मैंने कहा ठीक है। वो मैं मोटा हो गया था, तो मैंने कहा अब एक टाइम आता ना कि जब इंसान डिप्रेस्ड रहता है तो उसको लगता है बस अब मैं मेरे लिए कुछ करूंगा, अब मुझे भाड़ में जाए सर, वो सारी चीजें दिमाग से निकाल के मैं मेरे लिए कुछ करूंगा। तो मैंने उस दिन सोचा कि अब मैं फिर से थोड़ा ट्रांसफॉर्म करता हूँ, कुछ क्लाइंट्स जुड़ेंगे, थोड़ा बहुत पैसा आएगा, ब्याज देने में मदद मिलेगी। तो उस दिन सोच के ही हटा था। इतने में एक फ्रेंड आया, उसने कहा कि यूट्यूब चैनल बना, हम भी तेरे साथ वर्कआउट करेंगे, जो तू वर्कआउट करे। और मुझे कोई ये नहीं था कि मुझे यूट्यूबर बनना था, दूर दूर तक लेना देना नहीं था इस चीज से। तो उसने कहा हम भी तेरे बहाने वर्कआउट कर लेंगे, जो तू जिम में वर्कआउट करे, जो डाइट लेगा, वो हम वीडियोस देख के हम भी तेरे सहारे ट्रांसफॉर्म हो जाएगा। मैंने कहा ठीक है। तो मैंने चैनल बनाया 2019 में। मेरे 30 लोग थे, 30 सब्सक्राइबर थे, और वो 30 लोग वो थे जो वर्कआउट करते थे डेली। 28 व्यू 27 व्यू ये आते थे। और मुझे ये था जिस दिन मेरी बॉडी ट्रांसफॉर्म हो जाएगी 90 डेज में, फिर मैं चैनल डिलीट कर दूंगा, कोई फायदा नहीं है। 3 महीने तक 90 वीडियोस बनाए मैंने, 90 वीडियोस एवरी डे। और डिप्रेशन में था तो समझ में आता नहीं था करना क्या। सुबह उठना, जिम जाना, कार्डियो करना, वीडियो बनाना, फिर उसमें एडिटिंग में लगे रहना, उसको अपलोड करना, शाम को जाके वेट ट्रेनिंग करना। तो दिन मेरा निकल जाता था कि मैं बिजी हूँ। 90 डेज निकले। फिर 90 डेज के बाद मेरी बॉडी थोड़ी ट्रांसफॉर्म हो गई थी। तो मैंने कहा अब ये जो मेरे 30-40 दोस्त हैं जो मेरे साथ जुड़े हुए हैं, इनको बता तो दूं कि मेरी बॉडी कैसे ट्रांसफॉर्म हुई है। तो मैंने एक वीडियो बना के डाला, ऐसी कौन सी बना दिया था कि 90 डेज की जो ट्रांसफॉर्मेशन हुई है वो कैसे हुई है। डे 1 मैंने बोला हुआ था कि आज हम डे 1 का वर्कआउट कर रहे हैं, उसमें मोटा था। उसके बाद डे 90 का जो मैंने वर्कआउट को चलाया, वो वीडियो वायरल हो गई। वो वीडियो वायरल हुआ तो इतने मेरे 200-300 सब्सक्राइबर थे। एक दिन मैं उठा, मैंने कहा ये क्या 20,000 कहां से आ गए। 20,000 सब्सक्राइबर हो चुके थे मेरे चैनल पर, और उस पहली वीडियो के ऊपर 3 लाख व्यूज थे। और मुझे आदत थी 27-28 व्यूज देखने की। तो मैंने कहा यार ये तो कमाल चीज है। तो उसके बाद बहुत सारे लोगों की रिक्वेस्ट है, सर आपने मोटे लोगों के लिए तो बना दिया, पतले लोगों के लिए भी बनाइए, हमें पतला मोटा होना है, हमें गेनिंग करनी है। मैंने कहा चलो एक गेनिंग सीरीज भी बना देते हैं। उसके बाद चैनल यूट्यूबर तो बनना ही नहीं है। तो उसके बाद मुझे प्रोटीन ब्रांड का ना मेल आया कि हमें प्रोटीन, मुझे पता नहीं था यूट्यूब से पैसे भी आते हैं। तो उन्होंने मुझे बोला कि हमें प्रोटीन रिव्यू कराना है, हम आपको प्रोटीन भेजेंगे, एज इट इज प्रोटीन था, रॉ प्रोटीन। तो मैंने कहा ठीक है भेज दो, कर दूंगा। तो मैं वीडियोस देखता था सारे यूट्यूबर्स के कि यार ये तो डब्बा लेके बैठे रहते हैं हर वीडियो में, क्यों करते हैं ऐसा, मुझे पता नहीं था। मैंने कहा शायद अपना एक्सपीरियंस शेयर करते होंगे। तो उन्होंने कहा कितने पैसे लोगे। मैंने कहा पैसे लोगे। मैंने कहा किस चीज के पैसे, कि सर आप जो रिव्यू करोगे कितने पैसे लोगे। तो मैं तो मतलब शॉक हो गया। मैंने कहा इस चीज के पैसे भी मिलते हैं। तो मैंने कहा आप कितने दोगे। तो उन्होंने कहा 10,000 रुपए देंगे हम। तो मैंने कहा इंसान अपना कम ही बोल के चलता है। तो मैंने कहा नहीं मैं 15 लूंगा। मैंने कहा डिमांड करके देखते हैं। मैंने कहा मैं 15 लूंगा। कहते ठीक है डन। उन्होंने प्रोटीन भेजा, मैंने उसको रिव्यू करा, अगले दिन अकाउंट में 15,000 रुपए। फिर उस दिन से मुझे मजा आना शुरू हो गया। मैंने कहा यार ये तो सही चीज है। फिर उसके बाद एक BC डबल का आया, फिर उसके बाद एक और वे प्रोटीन का आया। होते होते फिर मैंने गेनिंग सीरीज में बहुत मेहनत की। मैंने कहा चलो अगर इधर से पैसा आ रहा है ना तो यहाँ मेहनत करते हैं अच्छी, ये भी नहीं है कि। उसके बाद कुछ लोगों ने बोला भैया क्या आप नेचुरल बॉडी बिल्डर हो। मैंने कहा बिल्कुल भी नहीं है। मैंने सारे लोगों को बताया जिनके मुंह से ये चीज निकलती है ना यूट्यूब के ऊपर या पब्लिकली कि हम इंजेक्शन लगाते हैं, उस बंदे का कैरियर खत्म। और यूट्यूब के ऊपर ये चलता है कि सारे एथलीट जितने भी यूट्यूबर्स हैं वो हम नेचुरल बॉडी बिल्डर। मैंने डे 1 बोल दिया। मैंने कहा भाई मुझे फॉलो कर रहे हो करो,
मेरी बॉडी के 80% रिजल्ट्स आपको मिलेंगे ही मिलेंगे, लेकिन अगर आप ये सोचो कि आपको 100% मिलेंगे तो वो नहीं मिल पाएंगे, बिकॉज मैं स्टेरॉइड्स यूज करता हूँ। राइट। तो जिस वीडियो में मैंने ये लाइन बोली ना, वो वीडियो भी वायरल हो गई। अच्छा। हाँ, और मुझे बहुत लोगों ने बोला था ये लाइन नहीं बोलनी होती यूट्यूब के ऊपर, तेरा कैरियर खत्म हो जाएगा, तुझे कोई देखेगा नहीं, सब बोलेंगे तो इंजेक्शन वाला। वो लाइन लोगों को इतनी अच्छी लगी कि भाई देखो, पता हमको है, सब लेते हैं, लेकिन ऐसे ओपनली बोलता कोई नहीं है। लेकिन आपने ये चीज जो बोल दी है ना, इसके लिए आपके हमारे दिल में आपके लिए रिस्पेक्ट 4 गुना ज्यादा बढ़ गई है। तो वहां से लोगों का प्यार मिलना शुरू हो गया। उसके बाद गेमिंग सीरीज जब बनाई, उसमें मेहनत की, उसके बाद मेरे 70-80,000 हो गए। मैंने कहा 1 लाख मुझे देखना है कैसा होता है। मुझे भी देखना। मिलियन की तो भाई इंशाल्लाह बहुत जल्दी होगा, टेंशन। अभी तो आप कम एक्टिव हो गए हो, पहले आप डेली डाल देते, अभी एक वीक में डाल रहे हो। हाँ, थोड़ा बिजी। देखता हूँ चैनल आपका रेगुलर। थैंक यू। सारे देखता हूँ मैं। अभी ऐसे हो रहा है 6 दिन में 5 दिन में एक वीडियो आ रही है। हाँ। तो मैंने फिर मुझे थोड़ी जिद चढ़ी, मैंने कहा 1 लाख तो मैं देख के रहूंगा। ये 1 लाख ऐसे दिखते हैं चैनल के ऊपर 100 के, और वो जो सिल्वर बटन आता है, गोल्ड की तो उम्मीद ही नहीं थी। मैंने कहा बहुत मुश्किल है यार, फिटनेस चैनल, कोई कॉमेडी हो या रोस्ट हो तो उसमें लोग, उनको मजा आता है, इंटरेस्ट आता है। कितनी ऑडियंस है फिटनेस की? 10% ऑडियंस है। राइट। 130 करोड़ लोगों में 10% लोग होंगे जिनको फिटनेस का शौक है, बाकी सबको चाहिए एंटरटेनमेंट, गालियां, बकवास। भाई 8 महीने में 1 लाख सब्सक्राइबर हुए मेरे उस पे फिटनेस चैनल पर। ये जो मैंने दूसरा चैनल बनाया ना, तो जैसे कोई मुझे उंगली करता है ना, तो मैं गालियां वालियां दे देता हूँ थोड़ी सी। जुनैद भाई 2 महीने में 100 गए हैं उस पे। 2 महीने में लोगों को गालियां, कंट्रोवर्सी, ये चीजें ना इतनी पसंद है कि इनमें घुसा लो इनको। एंटरटेनमेंट चाहिए, लेकिन यहाँ बैठे कितनी भी साइंस दे लो, कितनी भी नॉलेज दे लो, नहीं चाहिए किसी को। राइट। मुझे ये था गोल्ड बटन तो नहीं मिलता है, तो 1 मिलियन तो नहीं होते, लेकिन 100 के तो देखने एक बार कैसे होते हैं। राइट। 100 के पहुंचा जैसे तैसे। उसके बाद फिर 100 के पे मैंने एक वीडियो बनाई, उसमें सच बोला थोड़ा सा, तो लोगों को वो पसंद आई। फिर धीरे धीरे वो चैनल ग्रो होना शुरू हो गया। सुपर्ब। सो आपकी, अगर मैं एक अचीवमेंट की बात करूं जिसको आप कंसिडर करते हो कि वो एक मेरी अचीवमेंट है, तो वो एक वर्ड में आप क्या बताओगे? मेरी यूट्यूब फैमिली। अच्छा, यानी यूट्यूब। अभी मुझे ऐसा लगता है, हाँ, लाइफ की सबसे बड़ी अचीवमेंट अगर है ना, तो वो यही लोग हैं। मतलब इतना प्यार, इतनी रिस्पेक्ट जो मिल रही है ना, यही अचीवमेंट है। इससे बड़ी अचीवमेंट आई डोंट थिंक कोई हो सकती है। ठीक है। सक्सेस की डेफिनेशन आपके लिए क्या है, और सक्सेस की डेफिनेशन देना चाहोगे अपने फॉलोअर्स को? देखो, सक्सेस की डेफिनेशन मेरे लिए भी जो है ना, आपने दंगल मूवी देखी है? हाँ। तो उसमें वो जो हमारे महावीर जी होते हैं, वो बड़े अकड़ू टाइप होते हैं, कभी तारीफ नहीं करते अपने बच्चों की। एंड में जब कॉमनवेल्थ में गोल्ड आता है गीता फोगाट का, तब वो रोते हुए बोलते हैं, बेटा शाबाश। हाँ। तो ये शाबाश ना मुझे मेरे फादर के मुझे सुनना है। आज तक कभी तारीफ नहीं सुनी है मैंने, कितना भी अच्छा काम कर लो। जब पहले तो उन्होंने यूट्यूब को ये बोलना शुरू करा, ये क्या काम है, इंजीनियर है, कहीं जॉब कर, IPS की तैयारी कर, IAS की तैयारी कर, पुलिस ऑफिसर बन। उनका बहुत मन था। अभी उनको अच्छा लगता है जब वो देखते हैं ना वीडियोस, लोगों के कमेंट्स आते हैं, तारीफ होती है इतनी। घर के नीचे लड़के मिलने जाते हैं, सर हमें भैया से मिलना है। तो कई बार मैं सोया होता हूँ, तो वो कहते हैं वो अभी सोया, 2-3 घंटे में उठेगा। कि हम 2-3 घंटे नीचे बैठ जाएंगे, लेकिन मिल के ही जाएंगे। That's so sweet. तो फिर मैं उठ जाता हूँ, मैं कहा यार किसी को वेट नहीं। मम्मी जैसे बोलती है कि बच्चे नीचे आए हुए हैं, तो मैं कहा यार ये खड़े रहेंगे तो इनको ऐसे वेट करा के फायदा नहीं। मैं उठ जाता हूँ। तो जब उनको देखता हूँ कोई पैर छू रहा है, कोई सेल्फी ले रहा है, बड़ा प्यार देते हैं लोग। तो वो जब फादर देखते हैं ना, तो उनको खुशी तो बहुत होती है, लेकिन वो अप्रिशिएट नहीं करते अभी। तो जिस दिन मैं ये सुन लूंगा ना, हाँ शाबाश, वो आपने मेरा नाम रोशन किया, वो मेरे लिए सक्सेस है। तो आप एक मैसेज अगर लोगों को देना चाहोगे तो क्या रहेगा? मैसेज मैं कई बार दे चुका हूँ कि जितने भी मेरे छोटे भाई हैं ना, 16, 18, 20 साल के, इनके लिए ना लाइफ में करियर सेकंड प्रायोरिटी हो जाता है, लड़की फर्स्ट प्रायोरिटी हो जाती है। प्यार पहले चाहिए सबको। तो मैं सारे लोगों को हमेशा ये बोलता हूँ कि भाई आपके साथ जिसको रहना होगा, जो आपको प्यार करता होगा, वो रहेगा। कंडीशन चाहे जो भी हो, सिचुएशन चाहे जो भी हो, वो रहेगा ही रहेगा, लेकिन आपने हमेशा करियर को फर्स्ट प्रायोरिटी रखना है। जुनैद भाई, मैंने जो टीवी सीरियल छोड़े थे ना,
वो उस लड़की के लिए ही छोड़ गए। उसने बोला कि यार मैं रह नहीं पाती, तुम तो मुंबई जाके सेटल हो गए और मैं दिल्ली कैसे रहूं अकेले, तुम वापस आओ। मैंने रातों रात लात मार दी। इतना काम था मुझे जुनैद भाई, इतना काम था मेरे पास, हर दिन के शूट्स थे मेरे पास, पर मैंने कहा नहीं यार नहीं करना, इसके लिए छोड़ देंगे। लेकिन वो चीज कोई भी नहीं देखता एंड में। आदमी देखता है कि तुम सक्सेसफुल हो या तुम फेलियर हो। फेलियर हो तो निकल भाई, सक्सेसफुल हो तो साथ में रह भाई। तो ये चीज नहीं रखनी है। जब आप सक्सेसफुल हो ना, तो हर इंसान आपको खोने से डरता है। राइट। मैं अगर सक्सेसफुल हो जाऊंगा ना, कोई भी, मेरी गर्लफ्रेंड, मेरे माँ, मेरे बाप, मेरे दोस्त, मेरे रिश्तेदार, हर इंसान मुझे खोने से डरेगा। जुनैद भाई ये चीज आपने भी देखी होगी अपनी लाइफ में। जब आपके पास कुछ नहीं है तो आपको कोई भाव नहीं देता, लेकिन जब आप सक्सेसफुल हो ना, तो हर इंसान ये सोचता है कि जुनैद नाराज ना हो जाए। सही बात है। जुनैद का नाम है, जुनैद के पास पैसा है, जुनैद सक्सेसफुल है, तो जुनैद नाराज नहीं होना चाहिए, राजवीर नाराज नहीं होना चाहिए। अगर हमारे पास कुछ नहीं है तो भाड़ में जा, सबसे बाद वाली लिस्ट में हम लोग आ जाते हैं। तो अभी अरे उसको आना ना आना वगैरह। तो अभी वो आपकी जो एक्स गर्लफ्रेंड थी, उसने आपको कभी रिटर्न आने की कोशिश की? उसके मुझे कॉल्स आए थे शुरू में कि लेट्स पैच अप, ये वो। मैंने कहा नहीं यार अब नहीं हो पाएगा। तो अभी बिल्कुल भी नहीं हो पाएगा, अभी कोई भी नहीं। ऐसा तो नहीं हो सकता। वो बात अलग है कि आप बताना नहीं चाहते, कोई बात नहीं। नहीं अभी रूबल भाई कहते हैं सीधे शादी करो, ये चक्कर छोड़ो। मैंने कहा भैया जिस दिन आप करा दोगे उस दिन कर लो। लड़कियां यहाँ पे देख रही है कि शादी के लिए मुंडा तैयार है। हाँ तैयार हो। सो मेरे पास आपके लिए है एक रैपिड फायर राउंड, जिसको आपको चुटकी में जवाब देना है। आपको ये नहीं करना है अरे ये वो, नहीं, यू हैव टू लिसन वेरी केयरफुली और चुटकी में जवाब देना, ठीक है? योर फेवरेट चीट मील? जलेबी। योर फेवरेट प्लेस इन द वर्ल्ड? मॉम्स लैप। You hate? My ex. You love? My mom. I thought you will say my present. No, my mom. Your inspiration? My brothers. You want to forget? The time I spent in last 3 years, that depression phase of my life, I seriously want to forget. Your favorite time pass? Favorite time pass? Sleeping. Your favorite actor? Salman. Your favorite fitness athlete who do vlogging? जुनैद गालीवाला। ये क्वेश्चन में नहीं था, मैं तो अपनी तारीफ सुन रहा था। थैंक यू। मुझे पता। फेवरेट सॉन्ग? फेवरेट सॉन्ग हमारी अधूरी कहानी। Whom will you dedicate that song? कभी कोई मिलेगा तो then I'll see. कभी वापस से फोन आया तो अब मैं कर दूंगा। तो मजा आया यार आपसे बात करके, बहुत अच्छा लगा। आपकी तारीफ सुनी थी मैंने काफी, लेकिन आज पहली बार आपसे इंटरेक्शन हुआ। I will follow you on social handles and it was amazing. And guys, आप लोग भी फॉलो कर सकते हो। बहुत ही मस्त बंदे, दिल के एकदम प्योर है। कुछ मैसेज देना चाहोगे आप जाने से पहले भाई? सारे लोगों को मेरा यही मैसेज है भाई, माँ बाप से प्यार करो। पहली प्रायोरिटी माँ बाप और दूसरी करियर, दैट्स इट। इसके अलावा लाइफ में कुछ नहीं है। Amazing. So thank you so much guys for joining us and thank you for watching Fitness and Life with Junaid Kaliwala. And this was the last episode for this series. Hope अगर आप लोगों ने अच्छा प्यार दिखाया तो हम वापस से सीरीज लेके आएंगे पार्ट 2 में. So thank you so much once again and take care.